Good morning, student. This is part 4 of the chapter correlation, and in this video we are going to learn about rank correlation. In my last video I had explained you how to calculate Karl's Pearson coefficient of correlation. In this video we are going to learn how to calculate rank correlation. Spearman's rank correlation method is used to calculate the coefficient of correlation of qualitative variables such as beauty, bravery, wisdom, ability, virtue, etc. It was developed by the British psychologist C.E. Spearman. That is why its name was also Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation method बेटा हम तब यूज़ करते हैं when we are unable to give the values in quantitative terms. For example, beauty, bravery, wisdom, this is only the qualitative values. इसमें आप जो values दोगे वो qualitative के related दोगे. In that case, if we want to find out the correlation, we will use the rank correlation method, and it was developed by Spearman's. Properties of rank correlation. First one, correlation coefficient has no unit. Rank correlation की कोई unit नहीं है. Second, a negative value of R indicates an inverse relation. अगर correlation की negative value है तो it means it is तो क्या indicate कर रहा है? दोनों series में inverse relation है. Third one, if R is positive, the two variables moves in the same direction. अगर R की value positive है, it means जो दोनों series दी हुई हैं आपको x और y, they are moving in the same direction. The value of R lies between -1 and +1. जो R की वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है. If R is 0, the two variables are uncorrelated. Uncorrelated मतलब there is no correlation between the two series. If R is +1 or -1, it is a perfect correlation. A high value of R indicates strong linear relationship, and low value of R indicates a weak linear relationship. अगर coefficient of correlation की value R की high आती है, it means दोनों series के बीच में strong relationship है, और अगर coefficient of correlation की value weak आती है, कम आती है, तो वो weak linear relationship है. The value of R is unaffected by the change of origin and the change of scale. इसकी वैल्यू ओरिजिन या स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं करती. नाउ Spearman's had given the two formulas to calculate the Spearman's rank correlation coefficient. First one when ranks are not repeated, and the second one when the ranks are repeated. R is equals to 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n. We will use this formula when ranks are not repeated. And D क्या होता है बेटा? Rank difference. And how we will calculate the D? That is R1 minus R2. N is the number of observation. And in case the ranks are repeated, तो R की value हम कैसे calculate करेंगे? 1 minus 6 sigma D square plus 1 upon 12 m cube minus m plus 1 upon 12 m cube minus m plus and so on. The whole divided by n cube minus n. डी की वैल्यू यहाँ पे सेम उसी तरीके से कैलकुलेट होगी जैसे फर्स्ट वाले फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट किया. दैट इज़ R1 माइनस R2, दैट इज़ रैंक डिफरेंस. एम क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ आइटम्स विद द सेम रैंक. इसमें सो ऑन इसलिए लगाया, ये डिपेंड करता है कितने आइटम्स सेम रैंक पे लाई कर रहे हैं या कितने आइटम्स की रैंकिंग सेम आ रही है. एन इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नाउ first, we are going to solve the question when the ranks are not same. In the question, they had given rank in economics and rank in statistics. Means they have already given the series in the rank form, that is Rx and Ry. हमको ranks calculate नहीं करनी है यहाँ पे. Therefore, directly we will solve the value of D, that is Rx minus Ry, because the formula is 1 minus 6 sigma d square upon n cube minus n. इट मीन्स हमको d कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में डायरेक्टली रैंक्स दी हुई है
तो डी कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों रैंक्स को क्या कर देंगे, माइनस इंडिविजुअली। 8 माइनस 9 इज़ -1, 3 माइनस 5 इज़ -2, 9 माइनस 10 इज़ -1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 7 माइनस 8 इज़ -1, 10 माइनस 7 इज़ 3, 4 माइनस 3 इज़ 1, 6 माइनस 4 इज़ 2, 1 माइनस 2 इज़ -1, 5 माइनस 6 इज़ -1. नाउ वी विल कैलकुलेट डी स्क्वेयर, क्योंकि हमको फॉर्मूले में डी स्क्वेयर चाहिए। -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का अगेन 1, -1 का स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1। फॉर्मूले में हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो हम टोटल भी किसका करेंगे, डी स्क्वायर का। खाली बेटा डी स्क्वायर का टोटल कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 10 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें अब, 1 माइनस 6 इंटू 24 अपॉन 10 क्यूब माइनस 10, दैट इज़ 100 माइनस 10, इट इज़ 10 क्यूब इज़ 1000 माइनस 10, सॉरी 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, that is 1000 minus 10, it is 990. Therefore the calculation is 1 minus 144 upon 990. 144 upon 990 को हम सॉल्व करेंगे, the answer is 0.145. then we will subtract 0.145 from 1 में से 0.145 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 1 माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.854. यू कैन यूज द कैलकुलेटर टू सॉल्व दिस कैलकुलेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, एंड इन दिस सीरीज रैंक्स आर नॉट गिवन. एक्स और वाई दो सीरीज दी हुई हैं. तो in this question I will explain you how to calculate the ranks first. जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है x की सीरीज़ की बेटा, हमने यहाँ पे पहले x लिखा है फिर y लिखा है. x में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यू कैन सी हेयर इट इज़ 56, तो उसके सामने हमने 1 लिखा है. उसके बाद 55 है तो उसके सामने हमने 2 लिखा है. फिर 54 है तो 3 लिखा है. 51 है तो उसके आगे हमने 4 लिख दिया. 46 है उसके आगे हमने 5 लिखा है. 44 है उसके आगे हमने 6 लिखा है. 42 है उसके आगे हमने 7 लिखा है. 38 है उसके आगे 8 लिखा है. 37 है उसके बाद फिर 9 आ गया. 35 है उसके बाद तो 10 आ गया. ये तो कोइंसिडेंस है कि लाइन से रैंक्स जा रही हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो रैंकिंग है वो लाइन से बने. आप वाई सीरीज़ में भी ये चीज़ देख सकते हो. सबसे बड़ी वैल्यू 55 की है तो उसके आगे हमने 1 लिखा है. फिर 46 है उसके सामने 55 है उसके आगे 1 लिखा है. उसके बाद वैल्यू 52 है तो 52 के सामने हमने 2 लिखा है. नेक्स्ट वैल्यू 52 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी, उससे पहले 52 से पहले 50, वहाँ पे 3 हो गया. उसके बाद कौन सी वैल्यू है बेटा, 46, 4 हो गया. तो हमने उसको क्या किया, वैल्यूज़ को आप 1 2 3 4 रैंकिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे, बड़े से छोटा. उसके बाद 5th वैल्यू हमने किसको दी है बेटा, 42 को. 42 के बाद आता है ना 41, दैट इज़ 6. 39 की 7, 32 में 8, 31 में आ रहा है 9 और 30 में आ रहा है 10. तो हमने बड़े से छोटे में रैंकिंग दी है 1 2 3 4 करके. अब डी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कर रहे थे, RX माइनस RY. 10 माइनस 10 इज़ 0, 9 माइनस 8 इज़ 1, 8 माइनस 7 इज़ -1, 7 माइनस 5 इज़ 2, 6 माइनस 6 इज़ 0, 5 माइनस 9 इज़ -4, 4 माइनस 3 इज़ 1, 3 minus 2 is 1,
2 minus 4 is minus 2, 1 minus 1 is 0. अब डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे. 0 का स्क्वायर इज़ 0, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर इज़ 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर. फॉर्मूले में हमको सिर्फ डी स्क्वायर चाहिए, इसलिए हमने उसी का टोटल किया 28. वैल्यू पुट करें. 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन वाले में 1 माइनस 6 इंटू 28 अपॉन 10 क्यूब माइनस 10. 6 इंटू 28 कर रहे हैं तो 168 है, 10 क्यूब कर रहे हैं तो 1000 है. 1000 माइनस 10. अब 1 माइनस 168 अपॉन 990. 168 को 990 से जब आप डिवाइड कर रहे हो यू विल गेट 0.17. इन द लास्ट 0.17 को हम किससे माइनस कर रहे हैं? 1 से. 1 में से 0.17 माइनस करेंगे वी विल गेट 0.83 एंड दिस इज़ योर आंसर. I hope it is clear now. Thank you, students.